سورہ رحمان پڑھنے کے کون سے فائدے ہیں اور سننے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سورے میں کیا فرماتا ہے؟ کون کون سی نعمتیں عطا کرتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ بنے رہیں آخر تک۔ تو پہلے آپ یہ قرآن پاک کی سورہ رحمان تلاوت سنیں، پھر آگے آپ کو ہم بتانے والے ہیں اسے سننے پڑھنے کی کون کون سے فائدے ہیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علم البیان، والشمس والقمر بحسبان، والنجوم والشجر يسجدان، والسمع ورفعنه الميزان، اللہ تطغوا في الميزان، وآكموا الجوزين بالقسط ولا تكسروا الميزان، والأرض والزهاء إلا الأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ويحب ذو العرش واليحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من سلسل كالخفار، وخلق الجان من مرد من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشركين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقين بينهما برزخ إلا اليبغين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المقسط في بحر إلا الأنعام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفخر لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يمسر الجن والإنس إن تستم إن تنفذوا من أفتر السماوات والأرض فانفذوا إلا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شعوذ من النار ونحاس فلا تنصرون، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا نشقت سمعه فكانت ذروة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه الإنس والجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف مجرمون بشمعهم فيؤخذ بالنواصي إلا أفدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الجهنم التي يكذب بها مجرمون يطوفون بينهما وبين حميان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام رب جنتين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذو تعفدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عين جناختين، فيهما عين تجرين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل الفاكهة جوزين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنتين دهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قصرة طرف لم يطمسون أنس قبلهم والجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانت يتاقط والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء إلا الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، قدحا متين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عين جناختين،
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورج مقسط في خمام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطعمسوا انس قبلهم والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبكر إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم رب ذي الجلال والإکرام۔ इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना पैसा, ना शोहरत, ना ताकत, बल्कि सबसे बड़ी दौलत है दिल में अल्लाह की मोहब्बत। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए वो दिल कभी खाली नहीं रहता। उसमें सुकून भी होता है, सब्र भी होता है, उम्मीद भी होती है और रोशनी भी होती है। लेकिन ये मोहब्बत अचानक नहीं आती। ये एक सफ़र है, पहचान का, एहसास का, शुक्र का और तौबा का। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और ये मोहब्बत इंसान की पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल देती है। पहचान से मोहब्बत की शुरुआत। मोहब्बत हमेशा पहचान से शुरू होती है। जब इंसान अपने रब को पहचानना शुरू करता है तब उसके दिल में मोहब्बत के बीज पड़ने लगते हैं। जब वो सोचता है किसने मुझे पैदा किया, किसने मुझे आंखें दी, दिल दिया, सांस दी, कौन है जो बिना मांगे भी मुझे रोज़ी देता है, कौन है जो मेरी गलतियों के बावजूद मुझे जिंदा रखता है। जब इन सवालों का जवाब मिलता है मेरा रब, तो दिल झुकने लगता है और मोहब्बत जन्म लेने लगती है। नियमतों का एहसास मोहब्बत को गहरा करता है। जब इंसान अपने आसपास की नियमतों को देखता है, सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, पानी की राहत, माँ की ममता, दोस्त की वफादारी, तो उसे एहसास होता है कि ये सब किसी की रहमत है। वो समझता है मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ मुझे दिया गया है। ये एहसास दिल को नरम कर देता है और जब दिल नरम होता है तो उसमें मोहब्बत आसानी से जगह बना लेती है। इंसान सोचता है इतना देने वाला रब, मैं उससे मोहब्बत क्यों न करूं। गुनाहों पर शर्मिंदगी और मोहब्बत का दर्द। दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने की एक निशानी ये भी है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने लगता है। पहले जो गुनाह उसे हल्के लगते थे अब वही उसे भारी लगने लगते हैं। वो सोचता है मेरा रब इतना रहम करने वाला है और मैं उसी की नाफरमानी करता हूँ। ये सोच उसके दिल को तोड़ देती है और यही टूटा हुआ दिल मोहब्बत का सबसे सच्चा घर बन जाता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें इंसान अपने महबूब को नाराज़ करने से डरने लगे। इबादत से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, तिलावत करता है, तो वो सिर्फ एक अमल नहीं करता बल्कि अपने रब से बातचीत करता है। हर सजदा मोहब्बत का इजहार होता है, हर दुआ दिल की आवाज़ होती है, हर आंसू एक पैगाम होता है कि या अल्लाह मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहता। धीरे धीरे इबादत बोझ नहीं लगती बल्कि सुकून बन जाती है और यही सुकून दिल में मोहब्बत को और गहरा कर देता है। तन्हाई में याद करना मोहब्बत की असली पहचान। सच्ची मोहब्बत की पहचान ये है कि इंसान तन्हाई में भी अपने महबूब को याद करे। जब कोई बंदा रात के सन्नाटे में सबके सो जाने के बाद अपने रब को याद करता है तो वो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत मंजर होता है। वो कहता है या अल्लाह लोग सो गए लेकिन मैं तुझे याद करने के लिए जागा हूँ। ये तन्हाई की याद दिल में ऐसी मिठास पैदा करती है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलती। यहीं से मोहब्बत और मजबूत हो जाती है। मुश्किल वक्त में भरोसा, मोहब्बत की ताकत। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो मुश्किल वक्त में वो टूटता नहीं बल्कि अपने रब की तरफ और ज्यादा झुक जाता है। मुसीबत में वो ये नहीं कहता मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो कहता है या अल्लाह तू मेरे साथ है तो ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। ये भरोसा मोहब्बत से पैदा होता है और यही भरोसा इंसान को हिम्मत देता है कि वो हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहे। दुनिया की मोहब्बत कम और रब की मोहब्बत ज्यादा। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है तो दुनिया की फालतू मोहब्बतें कम होने लगती हैं। इंसान समझ जाता है कि दुनिया की हर चीज़ फानी है, पैसा भी जाएगा, लोग भी बदल जाएंगे, जवानी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका रब हमेशा रहेगा, वही साथ देगा, वही आखिर तक उसका सहारा बनेगा। ये एहसास इंसान को दुनिया की मोहब्बत से निकालकर रब की मोहब्बत में लगा देता है। शुक्रगुजारी से मोहब्बत और बढ़ती है।
जब इंसान हर छोटी बड़ी चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर देता है तो उसका दिल शिकायत से निकलकर शुक्र में आ जाता है। शुक्र करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और जो खुश रहता है उसका दिल अपने रब से और ज्यादा जुड़ जाता है। वो हर खुशी में अपने रब को याद करता है और हर नियमत में उसके एहसान को महसूस करता है। यही एहसास मोहब्बत को गहरा करता जाता है। आंसुओं में छुपी मोहब्बत। दिल में अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान कभी कभी दुआ में रोने लगता है। ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये मोहब्बत के आंसू होते हैं। जब इंसान कहता है या अल्लाह मैं तुझसे बहुत दूर चला गया था लेकिन अब लौट आया हूँ, तो उसके आंसू उसके दिल की सच्चाई बयान कर देते हैं और यही सच्चे आंसू मोहब्बत को और मजबूत बना देते हैं। मोहब्बत इंसान की जिंदगी बदल देती है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो गुनाहों से बचने लगता है, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, वो झूठ, घमंड, नफरत जैसी चीजों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त सोचता है मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं ऐसा काम कैसे करूं जो उसे नापसंद हो। ये सोच इंसान को एक नेक और पाक जिंदगी की तरफ ले जाती है। मोहब्बत का सुकून सबसे बड़ी नियमत। दुनिया की कोई दौलत वो सुकून नहीं दे सकती जो दिल में अल्लाह की मोहब्बत से मिलता है। ये सुकून ऐसा होता है कि इंसान अकेला होकर भी अकेला महसूस नहीं करता। वो जानता है कि उसका रब हर वक्त उसके साथ है, उसकी बातें सुन रहा है, उसके हालात जानता है। यही एहसास उसे अंदर से मजबूत और शांत बना देता है। आखिरत की याद और मोहब्बत की गहराई। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान आखिरत को भी याद रखने लगता है। वो सोचता है कि एक दिन मुझे अपने रब से मिलना है, उसके सामने जवाब देना है। ये सोच उसे गुनाहों से रोकती है और नेकियों की तरफ ले जाती है। वो चाहता है कि जब वो अपने रब से मिले तो उसका रब उससे खुश हो। यही ख्वाहिश मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी होती है। आखिरी पैगाम। दिल में अल्लाह की मोहब्बत कोई आम चीज नहीं, ये वो नूर है जो इंसान की जिंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आता है। ये मोहब्बत इंसान को गुनाहों से दूर, नेकियों के करीब और सुकून के रास्ते पर ले जाती है। जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है, उसकी नियमतों को महसूस करता है, उससे दुआ में बात करता है, उसकी खातिर गुनाह छोड़ देता है और तन्हाई में भी उसे याद करता है। मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई ताकत, कोई दौलत, कोई शोहरत टाल नहीं सकती। इंसान जितना चाहे दुनिया में मशगूल रहे, लेकिन एक दिन उसे सब छोड़कर जाना ही है। ये एहसास जब दिल में उतरता है तो इंसान की सोच बदलने लगती है। उसे महसूस होता है कि असली जिंदगी ये दुनिया नहीं, बल्कि वो जिंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। कब्र की खामोशी, हिसाब का दिन और अपने आमाल का सामना, ये सब हकीकतें हैं जो हमें मौत की तैयारी का एहसास दिलाती है। मौत का ख्याल दिल को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने के लिए होता है। जब इंसान सोचता है कि एक दिन उसे अपने हर छोटे बड़े काम का जवाब देना होगा, तो उसके दिल में गुनाह से नफरत और नेकी से मोहब्बत पैदा होने लगती है। सब्र की असली ताकत। मौत का एहसास केवल डर पैदा नहीं करता, बल्कि सब्र की तालीम भी देता है। सब्र यानी हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। जब इंसान जान लेता है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है और मौत उस इम्तिहान का नतीजा है, तो वो हर मुश्किल में सब्र करना सीख जाता है। सब्र वो रोशनी है जो गम के अंधेरों में इंसान का रास्ता दिखाती है। जब किसी अपने की मौत होती है, दिल टूट जाता है, आंखें रोती हैं, लेकिन सब्र इंसान को संभाल लेता है। वो दिल को ये समझाता है कि जो अल्लाह का था वही अल्लाह ने वापस ले लिया। यही सब्र का सबसे बड़ा मकाम है। मौत की तैयारी, दिल का सफ़र। मौत की तैयारी सिर्फ कफन खरीद लेने या वसीयत लिख देने का नाम नहीं है, बल्कि दिल को पाक करने का नाम है। असली तैयारी ये है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, दिल से नफरत निकाल दे, रिश्तों को सुधार ले और अपने रब से रिश्ता मजबूत कर ले। जब इंसान ये सोचकर इबादत करता है कि शायद ये उसकी आखिरी नमाज हो, तो उसकी नमाज में खुलूस आ जाता है। जब वो सोचता है कि शायद ये आखिरी दुआ हो, तो उसके आंसू सच्चे हो जाते हैं। मौत का एहसास इबादत में जान डाल देता है। कब्र का तन्हा सफ़र। दुनिया में इंसान कितने भी लोगों के बीच रहे, लेकिन कब्र का सफ़र तन्हा होता है। वहाँ न दोस्त काम आते हैं, न रिश्तेदार, न दौलत, न शोहरत। वहाँ सिर्फ अमल साथ जाते हैं, नेकी या गुनाह। कब्र की तन्हाई का एहसास दिल में खौफ नहीं, बल्कि होश पैदा करता है। इंसान सोचता है कि आज जो वक्त मेरे पास है वही मेरी असली पूंजी है। अगर मैंने इसे गुनाहों में बर्बाद कर दिया तो कल पछताना पड़ेगा, मगर अगर मैंने इसे इबादत,
खिदमत और अच्छाई में लगा दिया तो कब्र रोशन हो जाएगी। सब्र ईमान की पहचान। सब्र केवल दुख सहने का नाम नहीं है, बल्कि दिल का यकीन है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से हो रही है। जब इंसान सब्र करता है तो उसका ईमान मजबूत होता है। सब्र करने वाला इंसान गुस्से में भी गलत कदम नहीं उठाता, गम में भी उम्मीद नहीं छोड़ता और मुश्किल में भी रब से उम्मीद लगाए रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान सब्र कर लेता है उसने ईमान की बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। मौत का ख्याल दिल को जिंदा करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौत का ख्याल दिल को डराता है, लेकिन हकीकत ये है कि मौत का ख्याल दिल को जिंदा करता है। जब इंसान को अपनी मौत याद रहती है तो वो गुनाह करने से पहले सोचता है, किसी का दिल दुखाने से पहले रुकता है और हर फैसले में अल्लाह को याद करता है। मौत का एहसास इंसान को ये सिखाता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे नफ़रत में नहीं मोहब्बत में गुजारो। इसे गुनाह में नहीं इबादत में बिताओ। इसे घमंड में नहीं तवाज़ो यानी नम्रता में जियो। सब्र और शुक्र का रिश्ता। मौत की तैयारी में सब्र के साथ शुक्र भी ज़रूरी है। जब इंसान ये समझ जाता है कि हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, ज़िंदगी भी और मौत भी, तो वो हर हाल में शुक्र अदा करता है। गम में सब्र करता है और खुशी में शुक्र। यही मोमिन की पहचान है। सब्र और शुक्र मिलकर इंसान के दिल को मजबूत बना देते हैं। ऐसा दिल मुश्किलों में टूटता नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो जानता है कि हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह है और हर मौत के बाद असली ज़िंदगी है। गुनाहों से तौबा। मौत की सबसे बड़ी तैयारी। मौत की सबसे अहम तैयारी तौबा है, क्योंकि इंसान गुनाहों से खाली नहीं होता। हर रोज़ कुछ न कुछ गलती हो जाती है, लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तौबा दिल को हल्का कर देती है और मौत के खौफ को सुकून में बदल देती है। जब इंसान तौबा करता है तो उसे लगता है कि अब अगर मौत भी आ जाए तो वो अपने रब से मिलने के लिए तैयार है। यही एहसास मौत की तैयारी का असली मकाम है। रिश्तों को सुधारना भी तैयारी है। अक्सर लोग इबादत तो करते हैं लेकिन लोगों के हक मारते रहते हैं। याद रखो, मौत के बाद सबसे पहले हक का हिसाब होगा। इसलिए मौत की तैयारी का एक अहम हिस्सा ये भी है कि हम अपने रिश्तों को सुधार लें। किसी से माफ़ी मांग लें, किसी को माफ़ कर दें, किसी का दिल दुखाया हो तो उसे मना लें, क्योंकि कब्र में नफ़रत का बोझ बहुत भारी होता है और मोहब्बत का दिल बहुत हल्का होता है। दुनिया से दिल हटाना, आखिरत से जोड़ना। मौत का एहसास इंसान को ये सिखाता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, इसलिए दुनिया से दिल लगाने के बजाय आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दी जाए, बल्कि दुनिया को आखिरत की खेती बना लिया जाए। नेकी का हर काम, किसी की मदद, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सब मौत के बाद काम आने वाली दौलत है। सब्र गम को इबादत बना देता है। जब किसी अपने की मौत होती है दिल बिखर जाता है, लेकिन अगर इंसान सब्र कर ले तो वही गम उसके लिए इबादत बन जाता है। हर आंसू जो सब्र के साथ गिरता है वो इंसान के गुनाहों को धो देता है। हर दर्द जो अल्लाह की रज़ा समझकर सहा जाता है वो दर्जा बुलंद कर देता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान रोए नहीं, बल्कि ये है कि रोते हुए भी अल्लाह से शिकायत न करे, बल्कि उससे और करीब हो जाए। मौत की याद जिंदगी को बेहतर बनाती है। जो इंसान मौत को याद रखता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो वक्त की कद्र करता है, इबादत में सुस्ती नहीं करता, गुनाहों से बचता है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसे पता होता है कि हर लम्हा उसकी आखिरी सांस भी हो सकता है। ऐसा इंसान न किसी से जलता है, न घमंड करता है, न नफरत पालता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है। आखिरी मंजिल की तैयारी। एक दिन आएगा जब सांसें रुक जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी और लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन न कोई दौलत काम आएगी, न कोई ओहदा, न कोई शोहरत, सिर्फ सब्र, तौबा, नेकी और अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। दिल को साफ करो, नमाजों को संवारो, गुनाहों से दूर हो जाओ और सब्र को अपनी आदत बना लो, ताकि जब मौत आए तो डर नहीं, सुकून का एहसास हो। मस्जिद, अल्लाह का घर, जहां इंसान दुनिया की भाग दौड़ से हटकर अपने रब के सामने खड़ा होता है।
जहां आंखों के आंसू छुपाए नहीं जाते, जहां दिल की आवाज़ सीधे आसमान तक पहुंचती है। लेकिन इंसान को ये बात नहीं पता होती कि जब वो मस्जिद में कदम रखता है तो वो अकेला नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त फरिश्ते भी वहाँ उतरना शुरू कर देते हैं। पहला मंजर, मस्जिद की खामोशी और नूर। रात का आखिरी पहर था। मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी थी, फर्श ठंडी थी, हवा में एक अजीब सा सुकून था और एक बंदा धीरे धीरे मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने जूते उतारे, अदब से कदम रखा और दिल में एक ही ख्याल था, मैं अपने रब के घर आया हूँ। जैसे ही वो अंदर आया, मस्जिद की खामोशी और गहरी हो गई। लेकिन ये खामोशी खाली नहीं थी, इस खामोशी में नूर था, इस खामोशी में फरिश्तों की मौजूदगी थी। क्योंकि जब भी कोई बंदा मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए आता है तो फरिश्ते उसके कदमों का इंतज़ार करते हैं। दूसरा मंजर, फरिश्तों का पहला स्वागत। जैसे ही बंदा वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ा होता है, फरिश्ते उसके चारों तरफ जमा होने लगते हैं। वे उसे देखते हैं, उसके दिल की हालत को महसूस करते हैं, उसकी नीयत को पहचानते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, देखो ये बंदा दुनिया की नींद छोड़कर यहाँ आया है, इसका दिल अपने रब से मिलने के लिए तड़प रहा है। दूसरा फरिश्ता कहता है, हाँ, इसके हर कदम का सवाब लिखा जाएगा, मस्जिद तक आने का हर कदम इसकी गुनाहों को मिटा रहा है। फिर वे अदब से उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी खास मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है। तीसरा मंजर, तकबीर और फरिश्तों की गवाही। बंदा नमाज के लिए हाथ उठाता है और कहता है, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं गूंजता, ये आसमानों तक पहुंचता है। फरिश्ते इस आवाज़ को सुनते हैं और गवाही देते हैं कि ये बंदा दुनिया को छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा हो गया। जब वो रुकू में जाता है, फरिश्ते कहते हैं, ये झुकना किसी इंसान के सामने नहीं, ये झुकना सिर्फ अपने रब के लिए है। जब वो सजदे में जाता है, फरिश्ते हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सजदा इंसान की सबसे बड़ी इबादत है। एक फरिश्ता कहता है, देखो ये बंदा अपने माथे को ज़मीन पर रख रहा है, ये अपने रब के सबसे करीब हो गया। चौथा मंजर, मस्जिद में रोता हुआ बंदा। नमाज के बाद वो बंदा हाथ उठाता है, उसकी आवाज़ धीमी है लेकिन दिल टूटा हुआ है। वो कहता है, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल को साफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मस्जिद की ज़मीन भीग जाती है। फरिश्ते इस मंजर को देखकर भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, या रब, ये तेरा बंदा सच्चे दिल से रो रहा है, इसकी दुआ को खाली मत लौटाना। फिर वे उसकी हर दुआ पर आमीन कहते हैं। पांचवा मंजर, तिलावत और फरिश्तों का घेरा। कुछ देर बाद वही बंदा कुरान शरीफ खोलता है, धीरे धीरे तिलावत शुरू करता है। मस्जिद में उसकी आवाज़ गूंजती है, हर लफ्ज़ जैसे दिल को छूती है, हर लफ्ज़ में नूर होता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है, फरिश्ते उसके और करीब आते जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद नूर से भर जाती है। एक फरिश्ता कहता है, ये वही कलाम है जो आसमान से उतरा था, आज ये बंदा उसी कलाम को पढ़ रहा है। दूसरा फरिश्ता कहता है, इसकी हर आयत इसके दिल को रोशन कर रही है। छठा मंजर, मस्जिद में जमात और रहमत का उतरना। अब फजर या इशा की जमात का वक्त होता है। कई लोग मस्जिद में जमा हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब बराबर। जैसे ही इमाम तकबीर कहता है, पूरी जमात नमाज में खड़ी हो जाती है। उसी वक्त आसमान से रहमत उतरती है। फरिश्ते झुंड के झुंड मस्जिद में दाखिल होते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, देख तेरे बंदे एक साथ तेरी इबादत कर रहे हैं, इन सब पर अपनी रहमत नाजिल कर दे। मस्जिद का हर कोना नूर से भर जाता है, हर दिल को सुकून मिल जाता है और नमाज एक रूहानी सफ़र बन जाती है। सातवां मंजर, मस्जिद में बैठा तन्हा इंसान। कभी कभी एक बंदा ऐसा भी होता है जो नमाज के बाद मस्जिद के एक कोने में तन्हा बैठ जाता है। न वो किसी से बात करता है, न किसी को देखता है, बस चुपचाप बैठकर अपने गुनाहों को याद करता है। उसकी आंखें नम होती हैं, दिल भारी होता है और वो धीरे से कहता है, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन आज तेरे घर में बैठा हूँ, मुझे अपने करीब कर ले। फरिश्ते उसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रब, ये बंदा तेरे घर से खाली न जाए, इसका दिल टूटा हुआ है, इसे सुकून दे दे। आठवां मंजर, मस्जिद से निकलते कदम और फरिश्तों की दुआ। जब बंदा मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो नहीं जानता कि उसके पीछे पीछे फरिश्ते दुआ कर रहे होते हैं। वे कहते हैं,
या अल्लाह, ये बंदा तेरे घर आया, तेरी इबादत की, तेरे सामने रोया, अब इसे अपनी हिफाजत में रख। उसके हर कदम के साथ फरिश्ते उसकी हिफाजत की दुआ करते हैं और उसकी नेकियों को उसके नामा आमाल में लिखते जाते हैं। नवा मंजर, मस्जिद की असली हकीकत। मस्जिद सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं होती, ये वो जगह होती है जहाँ आसमान की रहमत जमीन से मिलती है, जहाँ इंसान का दिल झुकता है और फरिश्तों का जमावड़ा लगता है। जो बंदा सच्चे दिल से मस्जिद जाता है वो सिर्फ नमाज पढ़कर नहीं लौटता, बल्कि फरिश्तों की दुआएं, रहमत और सुकून लेकर लौटता है। आखिरी पैगाम, ए इंसान, जब भी मस्जिद का दरवाज़ा खुले तो ये मत समझना कि तुम अकेले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि फरिश्ते तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारा हर कदम गिना जा रहा है, तुम्हारी हर नमाज लिखी जा रही है, तुम्हारे हर आंसू की गवाही दी जा रही है। इसलिए मस्जिद को सिर्फ एक जगह न समझो, ये वो मुक़द्दस घर है जहाँ फरिश्ते उतरते हैं, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं और जहाँ एक गुनाहगार भी माफ़ी की उम्मीद लेकर आता है और माफ़ होकर लौट सकता है।